अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। फ़लस्तीन कब वजूद में आया, उसको किस किस ने रूल किया और इसराइल इस खित्ते में कब आया। सबसे पहले तो जो जगह है फ़लस्तीन, वहाँ पे मुख्तलिफ़ न्यूमरस ग्रुप्स ने जो है वहाँ पे रूल किया। इसमें असीरियंस थे, बेबीलोनियंस थे, पर्शियंस थे, ग्रीक थे, रोमन्स, अरब, सल्जक तुर्क्स वगैरह, इजिप्शियंस थे। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर आया फ्रॉम 1517 टू 1917। फिर आता है वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के ख़त्म होने के बाद 1918 में ब्रिटिश ने यहाँ का कंट्रोल ले लिया। उसके बाद द लीग of Nations issued a British mandate for Palestine, a document that gave Britain administrative control over the region. 1947 में, 2 decades of British rule, the United Nations proposed a plan to partition Palestine into 2 sections. इन्होंने जो है वो 2 सेक्शन के लिए एक पार्टीशन दी, Jewish state और independent Arab state के नाम से। The city of Jerusalem, which was claimed by capital by both Jews and Palestinian Arabs. उसके बाद Jewish leaders ने एक्सेप्ट किया, बट फ़लस्तीनियन अरब जो है वो इससे नाखुश थे। सिंस 1920 ये लागू हो गया। अरब ग्रुप जो है वो इससे मेजॉरिटी में थे पॉपुलेशन में, ग्रांटेड मोर टेरिटरी, ज़्यादा उनको जगह जो है वो चाहिए थी। दे बिगेन टू फॉर्म वॉलंटियर आर्मीज थ्रू आउट फ़लस्तीन, पूरी उसमें उन्होंने आर्मी बना ली। 1948 में, लेस देन अ ईयर आफ्टर पार्टीशन, फ़लस्तीन इंट्रोड्यूस Israel become a state. Britain withdrew from Palestine and Israel declared itself an independent state, implying a willingness to implement the partition plan. Almost immediately, neighboring Arab armies moved in to prevent the establishment of the Israeli states. उसके बाद Israeli war then should involve Israel and 5 Arab nations: Jordan, Iraq, Syria, Egypt, and Lebanon. By the wars and in July 1949, Israel controlled more than 2/3 of the former British mandate. 2/3, 2/3 हिस्सा जो है वो इसराइल ने कब्जा कर लिया। Jordan took control of the West Bank, Egypt, and Gaza Strip. 1948 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद न्यू चैप्टर स्ट्रगल बिटवीन Jews and Palestinian Arabs के दरमियान में, फिर इन्वॉल्विंग नेशन स्टेट्स एंड टैंगल ऑफ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वहाँ पे बना। द PLO इज बॉर्न, PLO बनती है वहाँ पे 1964 में। Palestine Liberation Organization was formed for the purpose of establishing a Palestinian Arab state on the land previously administered under the British mandate, and which the PLO decided to be occupied illegitimately by the state of Israel. उसके बाद इन्होंने जो है वो बनाई इसराइल को, जो स्टेट इसराइल को, उसको ख़त्म करने के लिए PLO बनाई, उसको लेके चलते रहे। इन शॉर्ट फिर 1969 में वेल नोन पाकिस्तानी लीडर जो थे यासिर अराफात became the chairman of the PLO and held that title until he died in 2004, जब तक वो रहे। 6 Day War हुई 1967 में, diplomatic friction and skirmish between Israel and its neighbors. 6-day Middle East war echoes along a second front, the diplomatic struggle at the United Nations Security Council. A series of emotionally charged meetings keeps delegates debating on nearly around-the-clock basis. Syrian Ambassador George Tomei charges Israel with continued ceasefire violations, saying that Israeli tank forces advanced toward a branch of the Jordan River. 1967, the clashes worsened after Israel
and Syria fought a ferocious air and artillery engagement in which 6 Syrian fighters' jets were destroyed. In the wake of the April air battle, the Soviet Union provided Egypt with intelligence that Israel was moving troops to its northern border with Syria in preparation for a full-scale invasion. यहाँ पे जो है वो चलती रही। फिर उसके बाद एक इसराइली डिफेंस फोर्स ने लॉन्च अ प्रिम्प्टिव एरियल अटैक अगेंस्ट इजिप्ट ऑन जून 5, 1967 में उन्होंने जो है वो एक हमला किया इसके ऊपर। बाय द एंड ऑफ द वॉर इसराइल हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द गजा स्ट्रिप। उसके बाद 6 दिन की जो जंग थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद इसराइल ने वो कंट्रोल गजा वाला भी हासिल कर लिया। वेयर द वेस्ट बैंक situated between the Mediterranean Sea and the Red Sea, the Sinai Peninsula की एक जगह है वहाँ पे भी इनको मिल गई जगह जो इन्होंने कब्ज़ा की थी। उसके बाद चलती रही कहानी, चलती रही, मुख्तलिफ अदवार आए। अराफात रिटर्न टू गज़ा in 1994 after being exiled for 27 years. He headed up the newly formed Palestinian Authority. Unfortunately, the Oslo Accords failed in their ultimate goal of bringing Israel and Palestine to agree over a full-fledged peace plan. वो अभी तक peace plan में कामयाब नहीं हो सके थे। In September 2000, the Second Palestinian Intifada began. One of the triggers for the violence was when Ariel Sharon and the right-wing Jewish Israeli who would later become Israel's prime minister visited the Muslim holy site at the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. Many Palestinians felt this was an offensive move and they protested. उन्होंने उसको जो है वो protest किया उसके लिए। Hamas. In 2006, a Sunni Islamist group won the Palestinian legislative election और वो वहाँ पे जीत गया। The same year, fighting between Hamas and Fatah, the political group that controlled the PLO. In 2007, Hamas defeated Fatah in a battle for Gaza. Gaza को हासिल कर लिया। Many countries consider Hamas to be a terrorist organization. The group has carried out suicide bombings and repeatedly called for the destruction of Israel. Current state of Palestine. उसके बाद हमास एंड फतह agreed to a deal that would form a unified national Palestinian government. उसकी वजह से जो है वो दोनों के दरमियान में एक सुलह का मुआहदा हो गया। Although Palestinians occupy key areas of land, including the West Bank and the Gaza Strip, some Israelis with their government blessings to settle in areas. और वो फिर वहाँ पे इसराइली बढ़ते गए उस जगह को कंट्रोल करते रहे मुख्तलिफ अदवार में। In 2017, leaders of the Hamas presented a document that proposed the formation of a Palestinian state using the 1967 defined borders, with Jerusalem as its capital. However, the group refused to recognize Israel as a state. In May 2018, tensions erupted when the US Embassy relocated from Tel Aviv to Jerusalem, perceiving this as a signal of American support for Jerusalem as Israel capital. तो अमेरिका तो सपोर्ट करता ही आ रहा है इसको। Palestinians responded with protests at the Gaza-Israel border, which were met with Israeli force, resulting in the death of dozens of protesters. मुख्तलिफ इन्होंने जो है वो दिए अखबार में। इसी तरह अब फ़लस्तीन का मामला हल क्यों नहीं हुआ है आज तक की तारीख़ तक? उसकी मेन वजह यह है कि जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से उनकी हदीस है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये जो जगह है हक़ल सुलेमानी और ये सारी जो जगह बनेगी द ग्रेटर इसराइल के नाम से, तो उन्होंने उसी पे वो काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या इसी तरह हम देखते रहेंगे मुसलमान बच्चों को किस तरह किस बेदर्दी से जो है वो की जा रही है, उनको किस बेदर्दी से मारा गया, अभी आज तक मारा जा रहा है। नमाज हो, इबादत हो, कहीं भी कोई भी हो, कुछ भी कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो वाक़या चल रहा है, घर से निकाल के बेघर कर दिए, जो लोग अरसों से वहाँ पे रहते आ रहे हैं, तो इसको कोई देखने वाला या कोई कुछ करने वाला नहीं। अब बात यह है कि डॉक्यूमेंटेड यूएन की अराउंड 250 से ज़ायद जो यूएन में पेश की गई थी करारदाद,
और सारी चीज़ें उनको जो है वो उसने सबुटैज किया है, उस पर कोई दरामद नहीं किया इसराइल ने। इसराइल जो है वो जो चाहता है वो कर लेता है, जब चाहता है वो कर लेता है। अभी रिसेंट लास्ट वीक में उसकी अमेरिका से जो है वो डील हुई है $750 million की। $750 million, इट्स ह्यूज अमाउंट। वो वेपन्स आर्म्स ख़रीद रहे हैं और कहाँ यूज़ हो रहे हैं सबको नज़र आ रहा है। उनको कहीं ना कहीं तो यूज़ करने हैं और अमेरिका को अपनी चीज़ें बेचनी है। जब तक उनके हथियार और सारी चीज़ें नहीं बिकेंगी तो इतनी हथियार का फ़ायदा क्या। पैसा इसराइल पैसा दे रहा है और वो चीज़ ख़रीद रहा है। इतनी बड़ी डील हुई है। उसके बावजूद दुनिया में चाहे वो आर्टिस्ट हों, मेन हॉलीवुड हो, बॉलीवुड और मुख्तलिफ़ जगहों से जो लोग थे उन्होंने जो है उस पर आवाज़ उठाई। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जितनी पावरफुल वॉइसेस आई हैं लोगों की, वो काबिल सताइश हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर बात की, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान और तुर्की, ईरान, ये लोग जो है वो यूएन गए, यूएन में करार पेश की। उसके बाद फिर स्पीच FM शाह महमूद कुरैशी साहब की, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्पीच दी। बता दिया उस प्रेशर जब डेवलप हुआ, उसके बाद आहिस्ता 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 इस चीज़ों को बदला गया। वहीं पे जो है वो थोड़ी कुछ देर के बाद जो है वो जंगबंदी का सीज़फायर का ऐलान हुआ। वर्ल्ड लोगों की प्रेशर की वजह से, लोगों की प्रेशर बहुत बड़ा बिल्ड हुआ। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त इस पर काम किया, तुर्की ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस पर, चाइना ने, रशिया ने, ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो ऐसी चीज़ जब डिप्लोमेटिकली हैंडल होती हैं तो उनको फौरी तौर पे बिल्कुल उन पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट लाना है, वो किस तरह से होगा इसके ऊपर, जिस तरह अभी देख रहे हैं आप, इसी तरह से उनको और कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बोल्ड स्टेप्स, जो कि इसराइल को जो है वो लगाम डाल सकें, इसराइल को जो है वो लगाम डाल के और फ़लस्तीनियों को उनको हुकूक दे सकें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की उसमें ज़बरदस्त जो है वो काम था कि उन्होंने क्लियर बोला था कि जब तक फ़लस्तीन को उनका हक नहीं मिल जाता, फ़लस्तीनियों को, इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये क्लियर बात है। हम भी दुआ गो हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन, इसराइल ने जो फ़लस्तीन के बच्चों, माँ बहनों और जो भी घरों का वहाँ हाल किया उनके लिए, कि उनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो रिकवरी हो। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।